Hello. Now, today my topic is angina pectoris. You can say the other name. And I am your teacher, Muhammad Rashid Yaqub, Assistant Professor at Faculty of Pharmacy, Hamdard University. About angina. What is angina? Most of you people they heard the name of angina or heart failure and hypertension, but you can should be differentiate all of them and what is basic difference in which angina, what happened, and what are signs and symptoms and causes of the this disease and other disease. So you should know about that, and you should be differentiate each other. So about angina, just I tell you about the definition of angina. That is chest pain. Angina is a chest pain or discomfort caused when your heart muscles doesn't get enough oxygen rich blood. ठीक है, आपके हार्ट को अगर ब्लड सही तरह ना पहुंच सके, ऑक्सीजन यार वो ऑक्सीजन जो जिसमें ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी शामिल हो, तो वो सही तरह आपके हार्ट में ना जाए वो ब्लड, तो इसकी वजह से डिस्कम्फर्टेबल हार्ट हो जाता है और इसमें पेन शुरू हो जाता है जिसको एंजाइना कहते हैं. इट मे फील लाइक प्रेशर और स्क्यूजिंग, जैसे सुकड़ रहा है और प्रेशर बन रहा है हार्ट के अंदर, ऐसा ऐसा डेवलप हो जाता है कि चेस्ट के अंदर डेवलप हो जाता है कि चेस्ट हम पेन हो रहा है. सो द डिस्कम्फर्ट also can occur in your shoulder or arms, neck, jaw, or the back here. Angina pain may even feel like indigestion, जैसे indigestion भी हो रही, तो इसमें ऐसा भी फील होता है. But angina is not a disease. I cannot say it is a disease. You can say it's in the category of the disease, but it is a pain. It is a pain uh, in the chest and due to lack of oxygen-rich blood supply. Okay. In next slide, types. Types. There is three types of angina. That is stable angina, unstable angina, or variant angina. And stable angina, you can say the classic angina or effort angina. That's the other name. And unstable angina, that is crescendo angina. Variant angina, the principal angina, you can say it. And if you understand this figure, there is four types. I just explained here. First of all, there is normal, and there is the three types. Total four diagram here. That is first one is a normal coronary artery, that is supply the blood to the here heart. That is artery. Okay, if there is arteries, you see his normal condition is fine, is flowing the blood normally, smoothly. If there is some, you see here, this is stable angina is an example of a stable angina. There's atherosclerosis here. Some you see here fat, some fat here. So the flowing of blood is going on, but it's very difficult. Is some resistance here. This is a stable angina. And unstable angina, you see here some blood clot also. If there is some blood clot, there is very difficult to this flowing of blood to the heart, or oxygenated blood come or go from this way. And what about
Variant angina, you see here spasm, इस coronary spasm here, यहाँ सिकुड़ गया बिल्कुल, और जो पाइप पूरा का दब गया ये कह लीजिए, तो यहाँ पर ये एंजाइना हो जाता है। यानी एक वेरिएंट एंजाइना की एग्जाम्पल, ये डायग्राम को अगर अच्छी तरह आपने समझ लिया तो उन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लिया, जो नॉर्मल से हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो उसको एक्सप्लेन करें अगर तीनों को, इसी डायग्राम को, तो स्टेबल को जो था वो आप देखिएगा कि स्टेबल और क्रोनिक एंजाइना, क्रोनिक एंजाइना, व्हाट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना occur when the heart is working harder than usual. For instance, during exercise, it has regular pattern and can be predicted to happen over month or even years. Rest of medication relief symptoms. And what about the stable angina, unstable angina? That is first one, the stable angina, then unstable angina. Unstable angina does not follow a regular pattern. It can occur when at rest and is considered less common and more serious because rest and medication do not relieve. Okay, this version can signal a future heart attack with a short time, hours or week. समझ आया जी? ये क्या चीज़ है जी? इसमें अनस्टेबल एंजाइना में क्या चीज़ हुई कि इसमें ये कंडीशन जो है ज़्यादा सीरियस है। इसमें आपने डायग्राम भी देखी थी, इसमें ब्लड के क्लॉट्स भी जमा हो गए थे, और जो कि शॉर्ट इसके में जो सिग्नल है कि हार्ट फेलर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर और वीक्स के अंदर। तो उसको टेक केयर करके उसको रिमूव करना चाहिए, या उसको फ्लो को जो हमने ब्लड का फ्लो को रेगुलर करने के लिए इसके ट्रीटमेंट करना चाहिए। Unvariant and that is the name microvascular angina. Variant or the prinzamental angina or microvascular angina are rare and can occur at rest without any underlying coronary artery disease. This angina is usually due to abnormal narrowing or relaxation of the blood vessels, reducing blood flow of the heart, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था। ये देखिए, ये आखिरी वाला वेरिएंट angina, तो ये वेरिएंट angina हो गया। सिम्टम्स, आप एंजाइना के सिम्टम देखिएगा जी, कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। यूजुअली ये जो है चेस्ट के रीजन में होंगे, और इसमें स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनिंग, burning or itching across the chest, usually the starting behind the breastbone, and this pain often spread to the neck, jaw, arms, shoulder, throat, back, or even the teeth. तो angina का पेन सिर्फ ये नहीं कि हार्ट में हो रहा है, बल्कि वो नेक, जॉ, यानी नेक की तरफ जाएगा, मैंने बताया जॉ की तरफ, आर्म्स भी, शोल्डर्स भी, थ्रोट, बैक एंड इवन द टीथ. What are the causes of angina? Angina is the most frequently the result of underlying coronary artery disease. सबसे पहले तो अभी देख लिए कि एंजाइना में हम मेन चीज़ क्या हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज इसमें हो रही है। ठीक है जी, इससे कोरोनरी आर्टरीज में कुछ भी डिफेक्ट आ रहा है और फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो रहा है, तो फ्लो में दुश्वारी हो रही है, तो वो एंजाइना का सबब बनती है। The coronary artery supply the heart with oxygenated rich blood. When cholesterol aggregate on the artery wall or and heart plaque form, the artery narrow. तो इस वजह से हो जाता है, and it is increasingly difficult for oxygen-rich blood to reach the heart muscles, and the arteries become too narrow, and damage to the arteries from other factors such as the smoking and a high level of the fat and or sugar in the blood can cause a plaque and to build up where the arteries are damaged. These plaque narrow the arteries or may break off
and form blood clot that block the arteries. डायग्नोसिस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखिए, अब डायग्नोसिस के तौर पे ज़ाहिर है वो टेस्ट किए जाते हैं। कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करने के कोई टेस्ट है। टेस्ट का जो फर्स्ट जो इसका जो होता है एंजाइना का देखा जाता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी कहते हैं। ईसीजी के आप देखें ना, एक तरह का होता है, फिर इसमें एक ग्राफ भी निकलता है। तो अब ईसीजी कह लीजिए, जो है रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें record the electrical activities of the heart and can detect when the heart is starved of oxygen. An electrocardiogram और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखिए, ये चीज़ों में फ़र्क देखिए आप, इसमें एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कह दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, एंड ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए इसमें किसका फ़र्क है, सी और के। बाकी ई और जी दोनों में पहला और आखिरी मिला हुआ है। ये देखिए, सिर्फ बीच का वर्ड जो सी आ रहा है, इसमें के आ रहा है। सी कार्डियो आ रहा है और ये के से पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली जर्मन में जो है के इसमें ए के जी कहते हैं, इसको लिखा जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ कह देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं यूजुअली अमेरिकन द्वारा। तो ये जर्मन से जो है ए के जी कहते हैं, आर द सेम। एंड EKG is a test that examines the हार्ट फंक्शन बाय द मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो मैंने कभी यहाँ पहले बताया, ईसीजी के मुतालिक वही ईकेजी है। तो जर्मन में इसको ईकेजी कहते हैं। स्ट्रेस टेस्ट डायग्नोस का पहले तो एक ये हो गया ईसीजी, और ये यू कैन से ईकेजी, और सेकंड वन स्ट्रेस टेस्ट, द ब्लड प्रेशर रीडिंग and an EKG while the patient is increasing फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली जाती है। चेस्ट एक्सरे, दिस एनेबल टू डॉक्टर्स टू सी द स्ट्रक्चर इनसाइड द चेस्ट। और एंजियोग्राफी एक चीज़ हो गई, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी की एंजियोग्राफी की जाती है, और जैसे डाई है स्पेशल एक्सेस वगैरह की मदद से, एंड शो द इनसाइड ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, वो पूरी आर्टरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कहाँ ब्लॉक है, वो नज़र आ जाता है। देन blood test, or some tests are very important, like fat, cholesterol, and sugar and protein levels. Risk factor, अब risk factor क्या क्या हो सकते हैं जनाब, क्या से risk factor है? अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, खाए जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, देख नहीं रहे किस में कोलेस्ट्रॉल है। और दो जो कहते हैं ना कि एक जो है लो है, एक हाई डेंसिटी भी होता है, लो डेंसिटी होता है। तो इसके लिहाज से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, बस अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाए ना, जब अनहेल्दी कह दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल तो लेना चाहिए हेल्दी वाला, लेकिन अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े है, हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो है रिस्क फैक्टर। टबैको और स्मोकिंग, तम्बाकू नोशी, टबैको स्मोकिंग, एंड डायबिटिक्स, बीइंग द ओवर वेट और ऑब्वियस, देखें ओवर वेट तो हर जगह खतरनाक हो रहा है, तो अपना वेट को मेंटेन करें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने पहले बताया था उसमें जो ज़ाहिर है मैंने बताया, एक दूसरे रिलेटेड ही हैं ये बीमारियाँ। हाइपरटेंशन में भी बताई ये बातें मैंने। एंड बीइंग ओवर द 45 ईयर्स ऑफ द एज फॉर मैन एंड ओवर द 55 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ वुमेन, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एंजाइना के, रिस्क फैक्टर पे हो जाता है। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट डिजीज़, तो उनको एंजाइना का ज़्यादा चांस होता है। ट्रीटमेंट आ जाते हैं जी, अब ट्रीटमेंट वही फार्माकोथेरेपी भी है और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है। तो ट्रीटमेंट में पहले तो ट्रीटमेंट बोला है, इसलिए ट्रीटमेंट अगर फार्माकोथेरेपी कहेंगे तो फिर मेडिसिन का जिक्र करेंगे। तो ट्रीटमेंट करके फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में जो है हम बताते हैं, सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज, जो कि हाइपरटेंशन में भी था वही ये एंजाइना में, लाइफ स्टाइल को अपना चेंज करिए एंजाइना से बचने के लिए। स्मोकिंग, अल्कोहल जो पी रहे हैं, चर्स और इस तरह की चीज़ें, स्मोकिंग है और मुंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे स्टॉप करिए। वैसे भी गुनाह है, नुकसान है, और बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा। स्टॉपिंग स्मोकिंग, कंट्रोलिंग द वेट,
रेगुलर चेकिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही जाके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर रहा था जिसकी वजह से एंजाइना हो रहा था। एंड रेस्टिंग एंड स्लोइंग डाउन, ठीक। अवॉइडिंग द लार्ज मील, यानी लार्ज मील एक साथ इतना खाना ना खा लें कि और बहुत सब कुछ खा लें और बाद में पेट भर जाए, फिर बाद में नहीं, ऐसा नहीं। थोड़े थोड़े पोर्शन में कर लें, 5 पोर्शन 6 पोर्शन कर लें और पेट भर के ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाते रहें और बहुत ही ऐसी डाइट ना लें जिसमें फैट हो या कोलेस्ट्रॉल हो। एंड लर्निंग हाउ टू हैंडल और अवॉइड द स्ट्रेस, स्ट्रेस को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह कम करना है, ये पता होना चाहिए। और क्या क्या खाना चाहिए, ईटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन लो फैट और नो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसे फैट ना हो। एंड लीन मीट एंड फिश, ये बहुत अच्छी है। इसके जो अगर हमने फैट से या इससे बचना है, कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्लग ना हो जाए या उसका जो फ्लो में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो में रुकावट हो, तो जाने से बचने के लिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें कि लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, रिकमेंड करते हैं ट्रीट एंजाइना इंक्लूड स्टॉपिंग स्मोकिंग and controlling weight, regular checking of cholesterol level, resting and slowing down, and avoiding the large meal, and learning how to handle or avoid the stress, and eating foods, vegetable, whole grain, and low fat, and no fat dairy products, and lean meat and fishes. मेडिकेशन जो कि फार्माकोथेरेपी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले तो नाइट्रेट्स इसके लिए होते हैं कि सच एज नाइट्रोग्लिसरीन आर मोस्ट ऑफन प्रिस्क्राइब फॉर एंजाइना। नाइट्रोग्लिसरीन इसको को सबलिंगुअल भी इस्तेमाल करते हैं, इसके इंजेक्टेबल्स भी आते हैं। एंड नाइट्रेट्स प्रिवेंट्स और रिड्यूस द intensity of angina attack by relaxing and the widening blood vessels. And other medicines may be used such as एस्प्रिन, जैसे को हम कहते हैं कि एस्प्रिन जो है एज 35 और 40 के ऊपर जो होते हैं वो तकरीबन 100 मिलीग्राम्स और 290 मिलीग्राम्स लेते रहे इसको, ठीक है जी। सो एस्प्रिन हो गया एक। एंड बीटा ब्लॉकर्स में आपने देखा था जो बीटा इसमें कार्डियो सिलेक्टिव एंड नॉन कार्डियो सिलेक्टिव दोनों तरह के हो जाते थे। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंजियोटेंशन converting enzyme जो AC इनहिबिटर्स, एंटी कोगुलेंट्स, ये यूज़ किए गए हैं मेडिकेशंस नाइट्रेट्स से लेकर यहाँ तक। नाइट्रेट्स हैं, एस्प्रिन है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंशन करने AC इनहिबिटर्स एंड एंटी कोगुलेंट्स। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने पहले वाले उसमें बताया था कि कोई भी डिस्कस किया हमने, कोई भी डिजीज़ डिस्कस किए, उसके बारे में हमने देखा, उसकी फार्माकोथेरेपी देखी, उसके बाद हर एक डिजीज़ का एक केस स्टडी आप जो है खुद से बना लें। वैसे तो आप प्रोफाइल के तौर पे बनाए कि पेशेंट प्रोफाइल लिखें, फिर वो सारी चीज़ें लिखते जाएं और फिर पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन वो अच्छी वे में बता सकते हैं कि उसको क्या कंप्लेन थी, क्या क्या इसको टेस्ट किए, एडमिट क्यों किया गया, कौन से मेडिकेशन इसको उस टाइम दी गई, क्या चेंजेस किए गए, फिर किस मेडिकेशन में उसको रखा गया परमानेंट, और इसको बाद कितने दिन तक इसको इस्तेमाल किया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, क्या नहीं हुई थी, जो तमाम की तमाम जो है उसकी पेशेंट्स के बारे में उसकी केस स्टडी कहलाती है, जो कि उससे पर्टिकुलर डिजीज़ में एडमिट हुआ था। अब कोई भी, ये तो मैंने एग्जांपल 2 पेज की एक केस स्टडी बना दी है, तो ये तो एक पॉइंट्स बना दिए, तो ये पॉइंट्स को जो पढ़ लीजिए, इसकी ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे
इसके मुतालिक देखिए 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, इसका नाम लिखते हैं क्या था, और उसकी हिस्ट्री क्या थी कि हाइपरटेंसिव प्रेजेंट्स एंड जीपी विद टाइट पेन एंड अक्रॉस द अपर चेस्ट, ये इसकी कंप्लेन थी। and the pain occur with activities but settle with the rest within a few minutes। ये उसके बताया था कब कैसे क्या हुआ था उसको और कब सही हो गया था। एंड ही हैड नॉट एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग एपिसोड ऑफ द चेस्ट पेन और चेस्ट पेन एट द रेस्ट, यानी कि उसको ज़्यादा देर तक नहीं होता रहा था, कुछ देर थोड़ी देर के लिए हुआ था, फिर वो उसके बेस में वो एडमिट हुआ। द पेशेंट कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर इंक्लूड द स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन, ही हैड द BMI ऑफ 29, उसका BMI 29 था, और स्मोकिंग पेशेंट की एक थी हिस्ट्री। एंड ही हैड बीन टेकिंग, और क्या क्या पहले ले रहा था मेडिकेशन को, ज़ाहिर ये भी बताई जाती है कि कौन सी मेडिकेशन ले रहा, ज़ाहिर इसको प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की या कुछ होगी, तो एम्लोडिफिन ले रहा था, रेमिप्रिल 10 मिलीग्राम की थी, एंड बेंड्रोफ्लोमिथाज़ाइड्स 2.5 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 5 years फॉर हाइपरटेंशन, यानी 5 साल से उसको ये प्रॉब्लम थी। अभी चेस्ट पेन के साथ वो एडमिट किया था उसको। And the GP diagnosed, the general practitioner से होता है उसने diagnose किया गया typical angina, and the started the patients of uh, bisoprolol 1.25 milligram once daily, and the glycerin trinitrate and spray and required to relieve the acute episode. The patient's symptom continued to show the dose bisoprolol was increased to 2.5 to milligrams daily। देखिए शुरू किया था इसको 1.25 मिलीग्राम से, लेकिन फिर क्या है कि पेशेंट के सिम्टम जो है आ ही रहते, तो उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया 2.5 मिलीग्राम। ये देखिए चेंजेस टाइम टू टाइम करते रहते हैं विजिट पे, जनरल प्रैक्टिशनर ने इसको इस तरह किया। एंड बिसोप्रोलॉल वाज इंक्रीज टू 5, और फिर 5 मिलीग्राम तक कर दिया, 1.25 से शुरू किया, फिर 2.5 एंड 5 मिलीग्राम तक उसको लेके गए वंस डेली। एंड देन एस्प्रिन भी इसके साथ ऐड की टू 75 मिलीग्राम वंस डेली, एंड सिमवेस्टेटिन 40 मिलीग्राम्स भी इसको प्रिस्क्राइब की। ही वॉज एडवाइज टू स्टॉप स्मोकिंग एंड द चेंज हिज डाइट, उसको एडवाइस किया कि स्मोकिंग छोड़ दो और डाइट पे इसको कंट्रोल करना है। एंड कोरोनरी एंजियो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसको इसीलिए यार से डाइट प्लान के तहत ही इसको दिया जा रहा था जो उसको खाना वगैरह। एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई इसकी, ज़ाहिर जाने में था, तो कोरोनरी ज़ाहिर ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी की गई, तो शो एज अ टाइट प्रोमक्सल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज स्टोनोसिस, which was treated by the implementing a drug eluting stents। तो वो ज़ाहिर स्टैंड भी डाला जाता है, फिर इसमें इसको ज़ाहिर थोड़ी सी डिसेंडिंग कंडीशन में आर्टरीज जो थी। एंड हिज सिम्टम वर रिलीव बाय द procedure, and his exercise tolerance has returned to normal। He was prescribed aspirin and clopidogrel for 1 year to reduce the risk of the stent thrombosis। and जब इसको स्टेंट डाल दिया गया फिर ज़ाहिर शॉर्ट ज़ाहिर 1 साल के लिए इसको 2 मेडिकेशंस पर रखा गया, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल में रखा गया, इसकी वजह से ताकि ये स्टेंट का रिस्क फैक्टर जो है ये जैसे रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टेंट थ्रोम्बोसिस। एंड कंटिन्यू और क्या सिमवेस्टेटिन एंड दे अदर, ज़ाहिर ये भी दे दी हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो ज़ाहिर उसकी वजह से ये ब्लॉकेज ना हो दोबारा से, सिमवेस्टेटिन एंड अदर एंटी हाइपरटेंसिव, बट इट्स नो लॉन्गर टू बिसोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल को डिसकंटिन्यू कर दिया था। एंड ही फॉलोड द लाइफ स्टाइल एडवाइस। ठीक है, कुछ मेडिसिन दी थी, कुछ पे स्टैंड लगा दिया गया, फिर उसको कौन सी मेडिकेशन मेडिकेशन 1 साल के लिए रखी, और क्या क्या एडवाइस की गई, ये तो एक केस स्टडी बता दी थी कि ये चीज़ एक इस बीमारी में ये केस स्टडी है, तो ये देखिएगा इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ख़त्म होता है, आप जो इसमें जाके दोबारा से आप जाइए और इसको यूट्यूब चैनल में भी देखिएगा, सब्सक्राइब करिए वहाँ पे चैनल जाके, ताकि सारे लेक्चर आपको मिल सकें और एक जगह जमा हो जाएं। और इसमें अगर आप कर सकते हैं तो इसमें प्ले करे जाके, अगर इसमें तो प्ले नहीं होता, उसमें जाके प्ले होगा यूट्यूब में जाके, तो तमाम की तमाम चीज़ लेक्चर आप देख लीजिएगा।
तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आप ने ये इसके कार्डियो का जो है कार्डियोवास्कुलर का दूसरा लेक्चर अटेंड किया। इसमें पहला लेक्चर जो है वो जो है हाइपरटेंशन का था और ये एंजाइना का था। थर्ड लेक्चर भी इंशाल्लाह इसी के मुतालिक कार्डियोवास्कुलर का पे देंगे, वो होगा हार्ट फेलियर का। और ठीक है जी, ओके बाय।